क्वेश्चन नंबर 32 एक बार कर लेते हैं. डिजायर. You should assume that today's date is 1st of June 2025. Explain with the help of supporting calculations the tax relief available for research and development expenditure for the following alternative structures. The business is unincorporated. The business is operated via a company. Oh, we should ignore the use of trading laws for this part of the question. Okay. Desire resigned from her job with Chip PLC on 30th of April 2025. ठीक है. Her he or she had been employed by Chip PLC on annual salary of 90,000 since January 2022. Has no other income apart from bank interest of 1,000 per year. Intends to start a new business to be called Duchess on 1st of September 2025. The Duchess business will sell pharmaceuticals. Market research consultants have estimated that 80% of its sales will be to commercial customers. Okay. The market research consultants were paid fees by Desire on November 24 and March 25. Budgeted results for Duchess business, blah, 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 ठीक है, loss है. Fees to be paid to market consultants have been deducted in arriving at the loss of the first period. ठीक है. Research and development costs have not been deducted from these figures. Okay. Duchess Business Research and Development. Desire would like to develop a revolutionary new drug to sell through through the business. The projected cost for the 7-month period ending 31st of March 2026 are as follows. Rent of laboratory, electricity and water and electricity, wages for Duchess employees working on research and consumables. सारे ही एक्सपेंसेस आई फील आते हैं. बट रेंट ऑफ लेबोरेटरी ये टोटल है कि सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है. Desire financial position. Desire has not yet decided whether to run a business as an unincorporated sole trader or via a company. Her primary objective in deciding whether or not to operate the business via a company is most beneficial use of the trading laws. भाई कुछ है ही नहीं इसमें. अरे भाई, एक मिनट. मैं क्या बोल रहा हूँ. हमको ऐसे दिया गया कि बिजनेस इज अनइनकॉर्पोरेटेड और वाया कंपनी, हमको इन दोनों में से कुछ तो करना है. बराबर है. इफ द बिजनेस इज अनइनकॉर्पोरेटेड देन दिस इज अ नॉर्मल एक्सपेंस विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्या बोलते हैं, फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ डिजायर. However, if this is operated via a company, then a 20% relief is given on the qualifying research and development expenditure. This scheme is called as RDEC scheme, research and development scheme. 20% relief is given because of which the cost reduces and the profits increase, so it is taxed at a higher, so therefore the amount of tax payable is higher. However, later 20% relief is given on the corporation tax liability, which gives the company a favorable position, a favorable net payable position. अभी मुझे इसमें से कुछ एक्सपेंसेस को मतलब माइनस करते जाना है, या मुझे बेसिकली इनमें से क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस निकालने हैं. मैं वही सोच रहा हूँ. वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आता है, कंज्यूमेबल्स भी आते हैं. आई नो इट कि कंज्यूमेबल्स आते हैं. वेजेस फॉर डचेस एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन रिसर्च, ये तो बहुत स्पेसिफिक है. आई फील आने चाहिए. एंड देन देयर इज रेंट फॉर लेबोरेटरी. रेंट फॉर लेबोरेटरी देखो, वैसे तो रेंट इज मतलब वो डिसअलाउड एक्सपेंस इन क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, बट अभी रेंट फॉर लेबोरेटरी बोला है स्पेसिफिक, मुझे तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ. बट वरना फिर ये रेंट को बेसिकली हम लोग निकाल देंगे. ठीक है. यहाँ पे आएगा 18,000. मैं बोलता हूँ 18,000 ही आना चाहिए. इसका 20% विच इज कितना आता है, 3,600. तो 3,600 पहले तो माइनस होगा, फिर बाद में जाके ये रिलीफ से भी माइनस होगा. मतलब ये पहले कॉस्ट से माइनस होगा, फिर बाद में जाके ये वो
अपने वो रिलीज से माइनस होगा। कैलकुलेशन ही बताना है ना, सपोर्टिंग कैलकुलेशन। 31 मार्च 26 के लिए बताना है, तो फिर यहाँ पे लॉस होगा। तो वो लॉस जो होगा ना, मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे 31 मार्च 26 का ही पूछा गया है। ठीक है, मैं तो यही अज्यूम करके जा रहा हूँ। लॉस जो मुझे हो रहा है वो मुझे 16,000 का हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, फीस पेड टू मार्केट रिसर्च कंसल्टेंट्स हैव बीन डिडक्टेड इन अराइविंग। और ये अलग है मुझे लगता है, ये कंप्लीटली अलग है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हैव नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम दिस फिगर्स। मैं क्या कहूँगा, ये लॉस है लेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज 33,000। अरे भाई, लेस आरडीसी स्कीम। क्यों आरडीसी स्कीम? अभी आरडीसी स्कीम के अंदर मैं ये बताना तो भूल ही गया, यहाँ पे मुझे पूरा वर्किंग नोट्स भी करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर फॉर आरडीसी स्कीम। जो हमें भी आते हैं। चलो, अभी इसका मुझे करना है 20% आरडीसी। टोटल लॉस, अभी ये इफ इनकॉर्पोरेटेड वाया कंपनी, if incorporated via company, if incorporated via कंपनी। तो अभी मैं वापस एक बार वर्कशीट पे जाऊंगा, या जो मेरे वो वर्ड फाइल रहती है वहां पे जाऊंगा एग्जाम में, और वहां पे लिखूंगा एज इन द करंट ईयर वी हैव इनकर्ड अ लॉस, वी कैन ईदर क्लेम द अमाउंट एज अ क्रेडिट फ्रॉम एचएमआरसी, और कैन कैरी फॉरवर्ड दिस इन द नेक्स्ट ईयर सो दैट द सेट ऑफ कैन टेक प्लेस देयर। ठीक है, ये अपन बता देंगे। RDC cannot be cannot initiate a tax refund, if I'm not wrong, but can reduce the liability। और क्या, ये तो हो गया। अब मैं ये बताऊं क्या है, द बिजनेस इज अनइनकॉर्पोरेटेड। अगर बिजनेस अनइनकॉर्पोरेटेड है ना, तो बेसिकली ये सब बेसिकली जो भी आपने खर्चा किया है ना, ये मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड है तो आरडीसी स्कीम आएगा ही नहीं, और आरडीसी स्कीम नहीं आएगा तो आपको ऐसा अज्यूम करके जाना है कि आपने एक्सपेंस ही नहीं किया है। मतलब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंस ही नहीं करोगे, ऐसा, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से। बट आई फील ये थिंकिंग ये है कि आप रिसर्च का खर्चा नहीं एक्सपेंस का माइनस मतलब माइनस कर सकते हैं, बहुत ही वियर्ड थिंकिंग है। बट ऐसा मैंने कहीं कहीं तो पढ़ा था। तो कंपनी के तो हमने बराबर किया है, अनइनकॉर्पोरेटेड के लिए वी हैव टू चेक कि भाई उन्होंने क्या आंसर लिखा है, सो लेट्स चेक। थॉमस भी करना है एक 30th, काफी अच्छा, बहुत टाइम से नहीं किया।
32 डिजायर, ये देखो। इफ इट इज अनइनकॉर्पोरेटेड तो क्या होगा, टोटल 33 विल बी अलावेबल, नहीं पूरा अलावेबल ही है, पूरा 33,000 आपको ऐड करना है। एंड नो आरडीसी स्कीम विल बी अवेलेबल, तो 33,000 एज अ एक्सपेंस। तो ये जो थिंकिंग थी ये उस पर्टिकुलर सम के लिए थी जो गलत है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके ऊपर। टोटल कॉस्ट 33,000 का माइनस 3,600, क्योंकि देखो हमने अलावेबल कॉस्ट निकाल, देखो टोटल ट्रेडिंग लॉस विल बी 45,400, परफेक्ट। repaid to the company by the HMRC or carried forward to offset against company's corporation tax liability in the future years। परफेक्ट बोला ये वाला हमने। कंपनी के लिए सब सब चीजें बराबर है। और यहाँ पे लेकिन हमको जो हमारा पहला थॉट था कि 33,000 पूरा का पूरा एक्सपेंस की तरह ही माइनस करना चाहिए, उसी के साथ मतलब जाना चाहिए था। आई थिंक हमारे फर्स्ट इंस्टिंक्ट ही बराबर होता है, वी जस्ट ओवर थिंक एंड जस्ट मेस दैट थिंग अप, ऐसा। Provide desire with a thorough and detailed explanation of the manner in which budgeted trading loss could be used, depending on whether she runs a business or as an unincorporated holder or via a company, and state which business structure would satisfy her primary objective. You are not required to prepare detail, thank God. तो कुछ calculations नहीं करना है। Provide detailed explanation on the manner in budgeted trading loss used in the, ठीक है। मेरे ट्रेडिंग में मुझे लगता है एज अ बिजनेस अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, तो इस लॉस को सेट ऑफ करने के ज्यादा बेटर चांसेस है, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। शी हैड एन एडिशनल सैलरी ऑफ 90,000 सिंस जनवरी 2020, सो देयरफॉर ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ कैन बी क्लेम्ड। अभी हम लोग बैठे हैं टैक्स ईयर 25-26 में, बराबर है ना? हाँ, हम लोग 25-26 में बैठे हुए हैं। 24-25, 23-24, 22-23, और मैं जनवरी 22-23 से एम्प्लॉयड थी वहां पे। नहीं, तो मैं, हाँ, सो आई वॉज एम्प्लॉयड इन द टैक्स ईयर 22-23 फुल, क्योंकि अप्रैल 22 से अप्रैल 23 का वो टैक्स ईयर होता है, और मैं एम्प्लॉयड जनवरी 22 से थी। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा 90,000 हम लोग है, मतलब हमारे पास वहां पे। सो इफ वी क्लेम ओपनिंग ईयर लॉस लीव क्लेम अंडर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, ठीक है ना, सो देयरफॉर मैक्सिमम टैक्स एट द रेट ऑफ 40% कैन बी सेव्ड। बट इफ वी ओपन अप एज अ कंपनी, then as a company we can only carry back for 1 year, which is, and that to current year and then carry back। करंट ईयर में तुम्हें में तो चलो लॉस ही है, और आई थिंक एक एक महीने की सैलरी है खाली 90,000। मैं कब छोड़ा मैंने कंपनी को, जो लेफ्ट हर जॉब ऑन 30th of April 25, तो 90,000 डिवाइड बाय 12, 7,500। तो माई PA is also getting wasted, because my PA is getting wasted, plus my loss is being set off in the current year, and after that I can carry back only 1 year against the मतलब वो total income through which the loss can be set off। प्लस ये कंपनी है, कंपनी एक्चुअली टोटल इनकम के सामने कर सकती है क्या सेट ऑफ 1 साल कैरी बैक? मैं ये सोच रहा हूँ। टोटल इनकम के सामने था कि ट्रेडिंग इनकम के सामने ही था? आई थिंक ट्रेडिंग इनकम के सामने ही था ना। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। बट बेसिकली अनइनकॉर्पोरेट में ज्यादा फायदा है, क्योंकि ओपनिंग या लॉस लीव स्कीम से आप 40% तक का आप टैक्स सेव कर सकते हो विदाउट एनी PA ऑल्सो गेटिंग वेस्टेड। वेदर शी runs a business as an unincorporated sole trader or via a company state business structure satisfied near primary objective का, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वैसे, हमने वो नहीं पढ़ा। पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव when deciding whether or not to operate a business via company is most beneficial use of a trading losses, okay, most beneficial use of a trading losses, ठीक है। सी, मैं ये बोल रहा हूँ इफ शी कैरी फॉरवर्ड्स ऑल्सो हर ट्रेडिंग लॉस, if she carries forwards also her trading loss, then also her tax is saved at 25%, which is the corporation tax rate if she operates via a company। ठीक है, एंड ऑल्सो द कैश गेट स्टक, सो कैश फ्लो implications आते हैं। बट इफ यू क्लेम और refund from the HMRC for your previous tax years, then your cash flow is very smooth। If she operates by a company, then obviously she can set it off against in the tax year 2027 against 22,000 by adjusting her PA. Still her tax is saved at 20%। ठीक है, इन द नेक्स्ट टैक्स ईयर हर टैक्स का कैन बी सेव्ड एट द ईयर 40%, बट अगेन कैश फ्लो गेट स्टक। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कैरी बैक करके ओपनिंग ईयर लॉस लीव क्लेम ले लेना चाहिए, चुपचाप, ऐसा मतलब मुझे लगता है।
खाली इसमें इस पूरे पार्ट में एक क्वेश्चन मुझे आया है अभी, जो मतलब जो मेरी गलती है, जो मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि अगर कंपनी की तरह मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा तो क्या मैं उसके पिछले साल से टोटल इनकम के साथ वो सेट ऑफ कर सकता हूँ कि नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। बट जहां तक अगर मुझे मतलब वो तुक्का मारना है, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं कर कर सकता हूँ सेट ऑफ, आई वुड से। अगर अगर मुझे एग्जाम में तुक्का ही मारना है तो फिर मैं यही बोलूंगा। लेट्स सी। Incorporated via company. If the business is operated via company, the loss for 7 year period we carried forward to set off against future profits. The earliest that one company's losses can be relieved year ending, reducing the corporation tax payable in January 28. Based on the predicted profits, tax will be saved at the small profits rate of 19% or max 25%. ये अपन बोल देंगे. However, tax saving only arise with the budgeted profits are achieved, as company doesn't appear to have any other income than gains. If business does not achieve profitability, losses will be wasted. ठीक है, तो इसलिए आप कैरी बैक नहीं कर सकते, उन्होंने कैरी बैक को कवर भी नहीं किया है, ऊपर ऊपर से भी नहीं, किधर से भी उन्होंने ऐसा वो कवर नहीं किया। देखो कॉर्पोरेशन टैक्स लॉसेस में मैं आ गया। ट्रेडिंग लॉसेस, व्हेन डीलिंग विद लॉसेस इज नेसेसरी टू नीड लॉजिक लेआउट, तो ये देखो कॉर्पोरेशन टैक्स अगर आपने लॉस किया तो आप कैरी बैक कर सकते हो। टोटल कैरी फॉरवर्ड लॉस, कैश फ्लो गेट्स टैक, वो कैश फ्लो तो बेसिक है। मैं एक्चुअली कैरी बैक देखना चाहता था, वो उन्होंने उस चीज को कवर ही नहीं किया। अगर कवर अगर होता तो वो कवर करते ना बेसिकली। करंट एंड प्रायर ईयर रिलीफ है, देखो करंट ईयर, करंट पीरियड बिफोर कैरी 12 मंथ्स अगेंस्ट टोटल प्रॉफिट बिफोर क्यूसीडीज। टोटल प्रॉफिट्स मतलब आप टोटल इनकम के सामने नहीं कर सकते सेट ऑफ को, तो वहां पे अपनी गलती हो जाती। ठीक है, वो एक सीखने को मिला। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में क्या होता है, इफ अ बिजनेस इज अनइनकॉर्पोरेटेड द लॉस कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर ऑफ लॉस एंड और प्रीवियस ईयर द टोटल इनकम ऑफ द 3 years प्रायर टू द ईयर ऑफ लॉस स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो यही उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्लेम बताया हुआ है। डिजायर्स एम्प्लॉयमेंट इनकम इन द टैक्स ईयर 25-26 ओनली 7,500 है। तो विद बैंक इंटरेस्ट 1,000 ऑल ऑफ हर इनकम विल बी रिकॉर्ड बाय हर पर्सनल अलाउंस। ठीक है ना, तो हर टोटल इनकम इन अर्लियर इयर्स इज 90,000 प्लस बैंक इंटरेस्ट। अकॉर्डिंगली शी शुड ऑफसेट द लॉसेस अगेंस्ट द इनकम फॉर द टैक्स ईयर एंड अर्लियर ईयर्स rather than income for the tax year 25-26. Loss for the tax year 25-26 could be offset against the total income for the tax year 24-25, the previous year, or the 22-23, the first of the 3 years prior to 25-26. This will obtain full relief for the losses at mixture of the basic and the higher rate taxes. Conclusion, desires primary objective is the most beneficial use of the loss. She should therefore unincorporated business का जाना चाहिए। ठीक है, यही उन्होंने बोला हुआ है, परफेक्ट, ये भी सही है। आगे, explain in detail the financial advantages and disadvantages of desire registering voluntarily for VAT on 1st of September 25 and the tax consequences of imports assuming she is VAT registered। तो हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। एडवांटेजेस तो बेसिक है कि भाई आप इनपुट टैक्स जल्दी क्लेम कर सकते हो, और अगर आपका प्री रजिस्ट्रेशन कुछ वैट है तो आप वो क्लेम कर सकते हो। अगर आप गुड्स का सप्लाई, अगर गुड्स का सप्लाई किया गया है तो 4 years का सप्लाई का है, तो अगर सॉरी अगर सर्विस का है तो 6 months का। एडवांटेजेस ये है। ठीक है, देन एक सेकेंड, हाँ, द if the size of the company is small, then that size gets hidden because the company's reputation increases as it being a registered company. If your customers are VAT registered, then they will prefer your company as their supplier because they can reclaim their input VAT। फिर disadvantages ये है कि for customers who are not VAT registered, for them the prices will be unattractive, because of which they would not select your company to be as their supplier, and therefore sales might go down। डिसएडवांटेजेस और क्या हो सकते हैं अभी इसके यार।
हाँ, if penalties, basically if now you have to comply with all the VAT returns and VAT payment dates. If you are late in submitting or filing any of them, then various penalties can be charged. ये सब हम बोल देंगे. एंड ठीक है ना, ये सब अपन ने यहाँ तक बोल दिया. स्टार्टिंग अपन आंसर के ऐसे ही करेंगे कि VAT needs to an individual needs to be registered for VAT when his taxable supplies are more than 90,000. However, some individuals can also elect for voluntarily registering for VAT. अभी आते हैं यहाँ पे. फिर अपन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएंगे जो अभी अपन ने बताए. Then and the VAT consequences of imports assuming she is VAT registered. अगर वो import कर रही है तो what VAT percentage is there in from the importing or from the country which she is importing is irrelevant because it will be taxed at 20% only. Because it will be taxed at 20% at imports, then उसका आउटपुट टैक्स भी आपको उसी पे रिकॉर्ड करना है. ठीक है ना. डिजायर्स फाइनेंशियल, अभी ये पढ़ते हैं उनका क्वेश्चन. डिजायर्स फाइनेंशियल पोजीशन मोस्ट, हाँ ये तो हो गया. अभी ये खाली रजिस्ट्रेशन फॉर वैट. द टर्नओवर ऑफ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द वैट रजिस्ट्रेशन लिमिट ऑन 1 January 2026. ठीक है. डिजायर वुड कंसिडर रजिस्टरिंग फॉर वैट अर्लियर इफ इट वाज फाइनेंशियल. ठीक है. डिजायर विल इम्पोर्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ओवरसीज बट इज अनश्योर ऑफ वैट ट्रीटमेंट. ठीक है. तो फिर यही है. ठीक है, बोल दिया फिर हमने कि एक टैक्स न्यूट्रल इफेक्ट जाएगा बिकॉज आपको इनपुट और आउटपुट वैट सेम अमाउंट के लिए रिकॉर्ड करना है. ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. देखो अभी अपन इनका आंसर पढ़ते हैं. डिजायर फॉर वैट विल एनेबल द बिजनेस टू रिकवर इनपुट टैक्स where possible on expenses and capital expenditure. This will reduce the costs incurred by business, thus reducing its loss and the capital allowances. VAT incurred on the fees paid on the market research consultants in March 25 can be recovered as a pre-registration input VAT. ठीक है. फिर द पेमेंट इन November 24 इज मोर देन 6 months. तो ये उन्होंने खाली क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए बोला हुआ है. अपन ने जेनरिक एस का आंसर दिया था. चलता है. 7 मार्क में से 6 मिल जाएंगे भाई, चलेगा भाई. द बिजनेस विल हैव टू चार्ज इट्स कस्टमर्स वैट एट 20%. दिस विल रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन द प्राइसेस चार्ज टू दोज कस्टमर्स हु आर अनेबल टू रिकवर वैट, दैट इज डोमेस्टिक कस्टमर्स एंड नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस कस्टमर्स. ठीक है. डिजायर में नीड टू कंसिडर रिड्यूसिंग प्राइसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल वैट ऑन इट्स कस्टमर्स. प्राइसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द एडिशनल वैट ऑन इट्स कस्टमर्स. बराबर है. फिर ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स. डिजायर मस्ट अकाउंट फॉर आउटपुट वैट ऑन द इम्पोर्टेशन. दिस कैन बी रिकवर्ड एज द इनपुट ऑन द सेम वैट रिटर्न. आपको पहले इनपुट की लाइन लिखनी है, बाद में आउटपुट की लाइन लिखनी है. इन्होंने पता नहीं ये हमेशा मतलब ऐसा करते हैं. आई डोंट नो व्हाई. एज द वैट कैन बी रिकवर्ड द ट्रीटमेंट इज टैक्स न्यूट्रल. ठीक है ना. चलो लेट्स गो.